फोर्जिंग प्रोसेसेस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बात करी स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, machining forging, roll forging, and rotary forging. These are the six forging processes. We discuss Smith या hand forging. In this Smith forging या hand forging, we discuss Smith forging is a modern version of the age-old process of blacksmithy done with hand tools alone, or the hammers and press used in Smith forging have a flat dies के लिए, and portable tools are often used in conjunction with these flat dies. And आगे बात करें हम लोगों ने कि तो the type of forging is employed where the quantity of production is not enough to justify the high cost of closed impression die या workpiece are so heavy that the use of such die impracticable. In Smith forging में यहाँ पे हमने बात करी pneumatic power hammers and steam operated power hammers के बारे में. This one is the pneumatic power hammers and single frame steam hammer. Then now, what is the hydraulic press and what is the use of this press? You have seen this diagram. This is the diagram of hydraulic press, and it is important to know that this is the view of outside view of hydraulic high capacity of hydraulic press. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में यहाँ पर guide pillar attached है. This one is the guide pillar, and in there our guide pillar, this one is the ram, this one is the ram, and this is the upper die, and this one is the lower die. तो ये डायग्राम यहाँ शो हो रहा है हाइड्रोलिक प्रेस हाई कैपेसिटी आउटसाइड व्यू ऑफ हैमर हाइड्रोलिक प्रेस. इन दिस तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम हाउसिंग द हाइड्रोलिक सिलेंडर या ऑयल टैंक का, यहाँ पे ये गाइड पिलर है, रैम, अपर डाई और लोअर डाई, और नीचे हमारा क्या है, बेस है. तो हाइड्रोलिक प्रेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होता है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो यूज़ ऑयल फॉर अप्लाइंग स्टेडी प्रेशर ऑन द वर्क पीस थ्रू द रैम के थ्रू इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि हमारा स्टेडी प्रेशर ऑन द वर्क पीस थ्रू द रैम, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा. और जो रैम होता है वो मेड अप टू मूव अप और डाउन बाय द प्रेशर ऑफ ऑयल जो कि सप्लाइड बाय द पम्प है. और इनका जो कंट्रोल है, कंट्रोल आर प्रोवाइडेड फॉर रैपिड अप्रोच, रैपिड रिवर्स और रेगुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड बाय द रैम बिफोर रिवर्सिबल. एंड फर्दर बात करते हैं तो जो रैम है वो कम्स इनटू कांटेक्ट विद द वर्क पीस and it encounters a resistance to its motion, and the wall connecting the top of the ram with oil tank is automatically closed. And further another makeup wall जो कि कनेक्टेड करता है टैंक और पंप को now opens and supplies oil. Then ram जो है further, then ram moves down relatively slow applying force on the job. So this is the हाइड्रोलिक प्रेस डायग्राम जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. और जब हम प्रेशर जो है हमारा अबव द रैम बिल्ड्स अप प्री डिटरमाइंड लेवल अ फॉरवर्ड और रिवर्स वॉल मूव्स टू रिवर्स पोजीशन ऑटोमेटिकली. एंड जो ऑयल इज फोर्स इनटू द टैंक एज द रैम मूव अप रैपिडली. और जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका हम लोग यूज़ करते हैं बोथ इन हैवी हैंड फोर्जिंग और डाई फोर्जिंग में. और हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कैपेबल है फॉर हैंडलिंग लार्ज फोर्जिंग लार्जर फोर्जिंग
than those handled by pneumatic and steam hammers. एंड जब हम लोग प्रेसिंग एक्शन जो है वो कैपेबल है फॉर पेनिट्रेटिंग डीपर इनटू द वर्क पीस, और इसका जो कॉज है वो नेसेसरी प्लास्टिक फ्लो विद प्रेसिंग देर इज अ लिटिल एनर्जी व्हेन द रैम कॉन्टेक्ट विद वर्क पीस। तो यहाँ पे हम जब जैसे प्रेस करते हैं तो देर इज लिटिल एनर्जी जो कि जब रैम कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस, एंड द एनर्जी बिल्डअप अ मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द प्रेस स्ट्रोक। तो दिस इज द हाइड्रोलिक outside view of hydraulic capacity hydraulic press. Then further जो opposite side है, opposite is true with hammering, and in hammering the maximum energy in hammering the maximum energy is available when the hammer tip contact the workpiece and the work metal flow. The energy is absorbed till none remains, and in pressing most of the energy available is transmitted to the work as the loss due to the movement of lower tub associated with the impact of hammering is eliminated. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज द हाइड्रोलिक प्रेस डायग्राम। और हाइड्रोलिक प्रेस पे जैसे हमने बात करी, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज जो होता है वो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं उसमें, ऑयल फॉर अप्लाइंग एसटीडी प्रेशर और वर्क पीस थ्रू द रैम। और रैम जो होती है वो मेड अप टू मूव अप और डाउन प्रेशर ऑफ ऑयल सप्लाइड बाय अ पम्प। और इसमें जो कंट्रोल्स होते हैं वो प्रोवाइड फॉर द रैपिड अप्रोच, रैपिड रिवर्स और रेगुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड बाय द रैम बिफोर रिवर्सल। और जब रैम कम इनटू कांटेक्ट with the workpiece, it encounters a resistance to its motion, or the valve connecting the top of the ram with oil tank is automatically closed. Another makeup जो valve है वो connecting the tank and the pump now opens and supplies oil, and the ram moves down relatively slowly, applying the force on the job. फिर हमने बात की जब प्रेशर अबव द रैम बिल्ड्स अप अ प्री डिटरमाइंड लेवल, अब फॉरवर्ड और रिवर्स वॉल जो होते हैं मूव टू रिवर्स पोजीशन ऑटोमेटिकली। और इसमें जो ऑयल होता है वो ऑयल इज फोर्स करता है इनटू द टैंक एज द रैम मूव्स अप रैपिडली। हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ होता है बोथ इन हैवी हैंड फोर्जिंग और डाई फोर्जिंग में। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेस का हम लोग यूज़ करते हैं बोथ इन हैवी हैंड फोर्जिंग एंड डाई फोर्जिंग। हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो कैपेबल होता है ऑफ हैंडलिंग लार्जर फोर्जिंग देन दोज हैंडल्ड बाय द न्यूमेटिक एंड स्टीम हैमर्स। और बात करते हैं आगे, तो जो प्रेसिंग एक्शन है वो कैपेबल होता है पेनिट्रेटिंग डीपर। जो प्रेसिंग एक्शन है वो कैपेबल होता है पेनिट्रेटिंग डीपर इनटू द वर्क पीस, एंड जो कॉजेज इसका नेसेसरी प्लास्टिक फ्लो। और जब विद प्रेशर विद प्रेसिंग देयर इज द लिटिल एनर्जी व्हेन द रैम कॉन्टैक्ट विद द वर्क पीस, एंड दिस एनर्जी यानी कह सकते हो जो एनर्जी बिल्डअप है टू मैक्सिमम एट द एंड ऑफ प्रेस स्ट्रोक, एंड देन अपोजिट इट इज थ्रू द हैमरिंग। और इस हैमरिंग में मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो अवेलेबल व्हेन द हैमर्स टब contact with the workpiece and the work metal flow, the energy is absorbed till none remains. And the last one, this is in pressing most of the energy available is transmitted to the work as the loss due to the movement of lower tub associated with the impact of hammering is eliminated.